اور اب خبریں تفصیل سے 2 سے 3 ملیٹنٹوں کے فرار ہونے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے راجوری کے دسل جٹا اور دسل گلی علاقوں میں تلاشی لی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 2 روز قبل ایک ملیٹنٹ مارا گیا تھا اور اس دوران اس کے مزید 2 ساتھی فرار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سے سیکیورٹی فورسز پورے علاقے میں سرچ آپریشن کر رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکورٹی فورسز اس پورے علاقے کو گھیرے ہوئے ہے۔ سرچ جو ہے وہ ابھی بھی اس پورے علاقے میں چلائی جا رہی ہے۔ دسل جٹاں کا علاقہ ہے اور یہاں پر جو ہے وہ سرچ جو ہے پورے علاقے میں چلائی جا رہی ہے۔ سیکورٹی فورسز کے جوان پوری طرح سے الرٹ ہیں، چپے چپے پر سیکورٹی فورسز جو ہے وہ تعینات ہے، کیونکہ 2 سے 3 آتنکی بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جن کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جو ہے وہ اس پورے علاقے میں چلائی جا رہی ہے۔ نیوز 18 کے لیے دسل گلی سے میں شکتی شرما۔ این سی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج کہا کہ G20 اجلاس اس وقت تک بے سود ہے جب تک امن نہیں آتا، اور امن تب ہی ممکن ہے جب پاکستان اور ہندوستان اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرے۔ سری نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ بی جے پی کو شکست دینے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتخابات ضروری ہیں کیونکہ بیوروکریٹس تک عام لوگوں کی رسائی نہیں ہے۔ فاروق عبداللہ نے اوڈیشہ ٹرین حادثے پر صدمے اور افسوس کا اظہار کیا۔ ڈیموکریسی تبھی ہوتی ہے جبکہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے۔ ایک لیفٹیننٹ گورنر اور اس کے ایڈوائزر ساری ریاست کو دیکھ نہیں سکتے۔ ہر ایک جگہ ایم ایل اے ہوتا ہے تو وہ اپنے علاقے کو دیکھ سکتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اور جو افسر شاہی ہے ان کو تو اس کی فکر نہیں ہے، کیونکہ وہ تو 60 سال تک ریٹائر نہیں ہوتے۔ ایک ایم ایل اے کو ہر 5 سال کے بعد پھر لوگوں میں جانا پڑتا ہے، کام نہیں کرے گا تو اس کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اس سے بہت ضروری ہے کہ الیکشن یہاں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح کی ہائپ G20 کو ملی، کیا لگتا ہے کہ ایسے میٹنگ کرنے سے یہاں پہ کچھ فائدہ ملے گا؟ دیکھیے، سب سے بڑا فائدہ تو ہمیں یہ ملا کہ جو سڑکیں کبھی بھی میکیڈم نہیں ہوتی اور جو آپ نیا دیکھ رہے ہیں سب کچھ رنگ ہوئے دیواروں کو، لائٹیں کام کرنے لگی، یہ سب اس کا فائدہ تو ہمیں ملا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا اس کا فائدہ ہمیں ٹورزم ان کے وہاں سے آئے گا، وہ سوال ہے۔ وہ تب تک نہیں آئے گا جب تک کہ یہاں کے حالات سچ مچ جو ہیں ٹھیک ہوں، اور وہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک یہ 2 بڑے ملکوں میں ایک فیصلہ نہ ہو جائے بات چیت سے کہ کیسے اس ریاست کا مستقبل بنایا جائے۔ یہ بہت ٹریجک ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں بلکہ دنیا میں ایک سب سے بڑا ٹریجک انسیڈنٹ یہ ہے کہ قریباً 300 سے زیادہ، اللہ رحم کرے، اس عالم کو چھوڑ گئے، اور کتنے ابھی ہسپتال میں ہیں، ان کا کیا حال ہے وہ تو میں جانتا نہیں ہوں کیونکہ میں وہاں نہیں ہوں، مگر ان کی حالت بھی بہت افسوسناک ہے۔ اور یہ ایک میجر چیلنج ہے، کیونکہ منتری جی نے کہا تھا کہ ہم نے وہ مشینیں لگا دی ہیں جن سے اب ایکسیڈنٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ اب فاسٹ ٹرینز کا معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے انشاءاللہ کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا اور کون اس کے لیے ذمہ دار ہے، اس کی تحقیقات۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے نیشنل بی جے پی لیڈر اور پارٹی کے کو انچارج برائے جموں کشمیر آشیش سود نے فاروق عبداللہ کو پاکستان سے محبت ظاہر کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اپنی بقا کا مسئلہ درپیش ہے اور یہ مضحک خیز لگتا ہے کہ فاروق عبداللہ اس موقع پر پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی وکالت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی اصل میں انتخابات ہوں گے، بی جے پی ہمیشہ اس کے لیے تیار ہے۔ جو دیش خود پیسز میں بٹنے والا ہے وہ ہمارے پیس کو لائے گا، یہ تو فاروق عبداللہ صاحب شاید بھٹک گئے ہیں ان سب باتوں سے۔ آج تو پاکستان خود پیسز میں ہونے والا ہے، کب کتنے پیس میں ہوگا معلوم نہیں ہے۔ فاروق عبداللہ صاحب، گاندھیز، عبداللہز اور مفتیز، یہ 3 پریوار اپنی راجنیتی بچانے کے لیے کبھی بھی دیش کا سودا کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ آج پورے دیش میں کوئی بھی پاکستان کے ساتھ اپنے دیش کے بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان سے کیول ایک بات ہوگی، پاک آکوپائیڈ کشمیر کب خالی ہوگا، کب ہمارا قبضہ ہوگا، کب ہماری سرکار وہاں بنے گی۔ فاروق عبداللہ اپنی بچی کھچی راجنیتی سہیجنے کے لیے، بچی کھچی راجنیتی بچانے کے لیے جماعت کے ایک ایلیمنٹ کو خوش کرنے کا کام کرنے کا پریاس کر رہے ہیں، تاکہ وہ جو اب ان میں اور محبوبہ مفتی میں جسے کہتے ہیں کہ فنڈامنٹلسٹک ووٹوں کی کس کے پاس زیادہ ووٹ جائیں گے،
क्योंकि जिस तरह से इस 9 साल सुशासन और गरीब कल्याण के प्रधानमंत्री जी के शासनकाल के मनाए जा रहे हैं, तो उन जगहों पर भी तो बात हो रही है जहां एक भी वोट नहीं मिला था और वहां हजारों सैकड़ों मकान लोगों को, गरीबों को मिले हैं, उनके घरों तक पानी पहुंचा है, किसान कल्याण सम्मान निधि उनको मिलती है, जहां एक भी वोट नहीं मिला था। तो भ्रम हट रहा है, लोगों को मालूम पड़ रहा है कि इन्होंने कभी किसी शिकारे वाले भाई को, किसी मोची को, किसी रंगरेज को सरकार में नहीं आने दिया है। ये 3 परिवार अपने आपस में ही माल को बांटते रहे हैं, पूरे वहां का जो राज्य की राजनीति को बांटते रहे। अब इनका दौर खत्म हो गया है। बची खुची राजनीति सहेजने के लिए पाकिस्तान प्रेम बार बार जागता है। भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ रेड फोर्ट, और गृह मंत्री ने संसद के पटल पे कहा चुनाव होगा। आप जानते हैं, आप यहाँ के एक बड़े चैनल के नुमाइंदे हैं, आप जानते हैं वोटर लिस्ट बनने का काम हो गया, वोटर लिस्ट पे ऑब्जेक्शंस मांगी जा रही हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो प्रोसेस है डेमोक्रेसी का, वो अपनी गति पे चल रहा है। उस गति को पूरा होते ही, जैसे ही चुनाव का ये सारे डिलिमिटेशन हो गया, सीटें बढ़ गई, वोटर लिस्ट बन रही है, जब वोटर लिस्ट स्वीकृत हो जाएगी, जनता के ऑब्जेक्शंस पूरे हो जाएंगे, तुरंत चुनाव हो जाएगा। सरकार ने तो संसद के पटल पर भी कहा है कि हम जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहते हैं। इस महीने बहुत सारे नेता दिल्ली से यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या कोई सुबह तो नहीं है, कोई इलेक्शंस की कोई बात तो नहीं जल्द में? देखिए, आपके माध्यम से तो लोग हम पे आरोप ही लगाते रहते हैं, हम सारा दिन चुनाव ही लड़ते रहते हैं, तो कब भी क्या होगा ये तो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि चुनाव कराना भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार का जिम्मा नहीं है, वो एक स्वायत्त बॉडी है, चुनाव आयोग, उसका जिम्मा है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट जारी कर दिया गया। पासपोर्ट महबूबा के हवाले कर दिया गया है और ये 10 साल के लिए कारामद रहेगा। वाज़ेह रहे कि दिल्ली हाईकोर्ट में तवील कानूनी जंग के बाद महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट मिला है। साल 2019 से पासपोर्ट की तस्दीक का मुतालबा था। पीडीपी का हमेशा गलत प्रोपेगेंडा, गलत तरीके से इश्यूज पेश करना, ये एक पॉलिटिक्स ही उनकी ऐसी है। जहां तक हमारी गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हम सबके साथ इंसाफ करते हैं और सब तो एक नजर से देख रहे हैं, चाहे वो पीडीपी हो चाहे एनसी हो। हमने कभी किसी पे कदगन नहीं लगाई और किसी का पासपोर्ट हमने रुका। आज आप देख रहे हैं 3 साल के बाद आज महबूबा जी को पासपोर्ट मिला। इसका सीधा सा मतलब है भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन को रेस्पेक्ट और एहतराम देती है और हम सारी जो पोलिटिकल पार्टीज है, सारी पोलिटिकल पार्टीज के साथ हम अच्छा सलूक रखते हैं, अच्छी तरीके से उनको जो है उनको ट्रीट करते हैं और हमने कभी इंतकामी सियासत नहीं लिया। सीधा सा मतलब है महबूबा जी को 3 साल के बाद पासपोर्ट मिलना है कि भारतीय जनता पार्टी इंतकामी। कुछ रोज कबल कोलकाता के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल रूम में कश्मीरी नौजवान की लाश पाई गई थी। नौजवान की शनाख्त खान साहब बडगाम के उमर बशीर गनाई के तौर पर हुई। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट से ये खुदकुशी का मामला लग रहा है, लेकिन अहल खाना का कहना है कि ये खुदकुशी नहीं है। 21 साल उमर बशीर गनाई की लाश को आज आखिरी रसूमात के लिए उनके आबाई मकाम लाया गया। उमर बशीर की लाश जो ही इलाके पहुंची तो वहां गम का माहौल था। इलाके के लोगों में गम और गुस्सा था। लोगों का मुतालबा है कि इस मामले में पूरी तरह से तफ्तीश होनी चाहिए। उमर के वालिद का कहना है कि उनके बेटे में कोई खराबी या कोई कमी नहीं थी, लिहाजा वो खुदकुशी करने वालों में से नहीं है। वहीं इनके दोस्तों का कहना है कि उमर को कत्ल किया गया है। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि इस केस की पूरी तरह से तफ्तीश की जाए ताकि इंसाफ फराहम हो। कॉल कर 9:30 वीडियो कॉल तो द्राव ये कमर बन नबर तो सुबह बजे 8:30-9 बजे तो मे आव फोन वलसा यू तरसा कलकत्ता यह उमर बेमार हालात खराब। बहरहाल गई 6 बजे फ्लाइट वो तुत तत मे वो तमो दोप अमिस दिस फौज पानस, मगर ये मे वो फौज मे कोर एक्सेप्ट तक फौज तम कह यह मोरमुत कित पे मूत क्या मूत तो मोर खा न मोर खा, मगर ये दलील कि मे नश मामल कि अगर फौज दिसम अंदर की चिट्ठी बंद। उमर भाई जो है वो शख्स थे जो गरीबों की आवाज़ थी। जैसे कि आपको पता है एक फाउंडेशन चल रही थी उमर भाई के हवाले से जिसका नाम है मैड, जो कि को फाउंडर था उमर भाई। उसका 3 दिन पहले बिफोर कपल ऑफ डेज जैसे कि आपको पता है एक जो वीडियो है वायरल हुआ था एक लड़की का, ठीक है, जिसको कैंसर हुआ था। एंड आफ्टर दैट जो पहली रील जो है, पहली आवाज़ जो है उमर भाई ने उठाई थी और उसके बाद जब 24 आवर्स में चेक किया गया अकाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा था उसमें।
तो वो आवाज जो है उमर भाई ने दी थी, लेकिन 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद हमें पता चलता है कि उमर भाई को मारा गया कॉलेज के हॉस्टल में। हमें यही इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, वो ये है कि उमर भाई जो है उसे हमें जस्टिस मिलना चाहिए। 2-3 दिन पहले मैं ये सोशल मीडिया चेक कर रहा था, तो मुझे एक मैसेज मौसूल हुई कि जिसमें मैंने पाया कि कुछ सीन हुआ है हमारे एक फ्रेंड कोलीग के साथ, जो एक पेशे से एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, जिसके साथ एक सीन हुआ है। लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब फैमिली को बुलाया गया कॉलेज के ज़रिए से, तो वहाँ पे कुछ अजीब ही दास्तान थी कि ऐसा लगता था कि सीधे ऐसा लगता था कि एक सोचा समझा एक कत्ल किया गया है। कुछ रोज कबल कलकत्ता के एक कॉलेज में उमर बशीर धनाई की हॉस्टल रूम में लाश पाई गई और आज उनकी जो लाश है आबाई इलाके पहुंचाई गई। और जब उनकी लाश यहाँ पहुंची, यहाँ पर गम का माहौल था, लोगों ने गम व गुस्से का इजहार किया। लोगों का मुतालबा है एडमिनिस्ट्रेशन से इस केस की पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए और ये पता चलना चाहिए आखिर उमर की मौत किस तरह हुई है। न्यूज़ 18 के लिए यारिखा खान साहिब से मैं आबिद हुसैन। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट एट 4। लैंडस्लाइडिंग से मकान मुनहदिम होने से जिला राजौरी के इलाके राजनगर बुधल में 3 खानदान बेघर हो गए। अब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। मुतासरीन का कहना है कि वो जिला इंतजामिया की मदद के मुंतजर हैं। इसी दौरान तहसीलदार कोटरंका सुमेत कोहली ने जाय हादसा का दौरा किया, मुतासरीन को फौरी इमदाद का यकीन दिलाया। अंदर जाने के लिए नहीं, अब बोरे हैं, पूरा पहाड़ी ऊपर से टूट के आ रही है। तो एक बार नहीं है, दूसरी बार हादसा हुआ हमारे साथ। तो हम गरीब लोग हैं, हम मजदूरी करके इधर तक पहुंचे थे, पर भगवान ने तोड़ दिया। अब क्या करें, कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्ची है, ये बच्चा है, खुद है, मजदूर है, क्या बनाएंगे इसके? हाँ, हमारे साथ पहले भी हमारे साथ हुआ है। 2019 में मैं तो डीसी ऑफिस भी गई, उधर हमारी फाइल पड़ी हुई है, मुझे कुछ नहीं मिला। और मजदूरी करके हम यहाँ तक पहुँचे थे, तो अब उधर से पहाड़ी आके तोड़ गई सब कुछ। तो अब बच्चे कहाँ रखेंगे रात को? हम माल मवेशी अंदर, वो कहाँ रखेंगे, कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई जगह नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल, अब कहाँ रहे हैं, कोई जगह नहीं, ठिकाना नहीं, कहाँ जाएंगे? टोटली डैमेज हो गया सब कुछ। अब स्लाइडिंग आ रही है, पूरा सामान टोटली पहले भी लॉस हुआ था। तो वो फोटो फाइल सब डीसी ऑफिस पड़ी है, डीसी ऑफिस में। डी साहब बोल रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है जी, हम कहाँ से लाएं ये वो। तो अब दूसरी बार भी हो गया है, तो कोई आज तक हमारी कोई हेल्प गवर्नमेंट ने नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी कंपनसेशन हो सकती है वो हम कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इनको कंपनसेशन देने की कोशिश करें। ऊपर से आज जब मैं यहाँ पे आया तो इन लोगों ने एक डिमांड की है कि ये जो पहाड़ी है ऊपर वाली, आप देख सकते हो, इस पहाड़ी में से पत्थर आने की और भी संभावनाएं बन रही हैं। तो इसलिए इन लोगों की डिमांड ये है कि हम लोग ज़ूलॉजिकल सर्वे वाले को एक बार उनकी टीम यहाँ पे आए। अंदर बैठे हुए थे तो अचानक से बारिश आई, पहले बारिश थी तो अचानक से पीछे से आया, हमने सोचा पूरा घर चला गया। तो उसके बाद हम सारे नीचे चले गए। तो उसके बाद में हमने देखा तो अंदर मतलब सारा कुछ टूट गया हुआ था। अभी बाहर बैठे हुए हो खुले में? हाँ जी, सबर। अभी आपका कहाँ, रात को और अंधेरे में कहाँ जाओगे? रात होगी, अभी क्या पता कहाँ जाएंगे। क्या अपील करती हो आप? बस यही अपील करते हैं कि हमें। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक दर्दनाक स्टोरी है, दर्दनाक कहानी है इस परिवार की। खुले आसमान के नीचे ये परिवार है, इनका घर जो है वो टूट चुका है और कोई भी इंतजाम इनका अब नहीं है। अंधेरा पड़ेगा, रात का वक्त होगा, तब ये कहाँ जाएंगे? खाना पकाना इनका कहाँ होगा? रहेंगे ये कहाँ पर? ये सवाल पैदा होता है। और अभी तक इमीडिएट रिलीफ प्रशासन की तरफ से आश्वासन जो है वो मिला है, अभी तक इनके पास कोई रिलीफ नहीं पहुंची है। सिर्फ आश्वासन जो है वो प्रशासन ने दिया है कि इनकी मदद जो है वो की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के बुद्धर राजनगर से मैं शक्ति शर्मा। बीजेपी की जानिब से आज टाउन हॉल त्राल में वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी को मजीद मजबूत करने को लेकर गौर खौस किया गया। पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर की सदारत में यह इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वर्करों पर जोर दिया गया कि वो जमीनी सतह पर पार्टी को मजबूत बनाएं। प्रोग्राम में चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मंजूर अहमद खान, जनरल सेक्रेटरी जिला सदर मोहम्मद शफी वानी, इंचार्ज हल्के फारूक अहमद, दीगर कायदीन के साथ साथ त्राल के पार्टी वर्करों ने भी शिरकत की। इस दौरान कई सियासी वर्कर बीजेपी में शामिल हुए।
वर्किंग कमेटी मीटिंग आज चल रही थी त्राल के इस टाउन हॉल में। त्राल कॉन्स्टिट्यूंसी की वर्किंग मीटिंग थी। इसमें हमने खाली जो अहदेदार है त्राल कॉन्स्टिट्यूंसी के, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी, उनको बुलाया है। क्योंकि हमारा एक सेटअप रहता है, हमारे पहले नेशनल लेवल पे स्टेट ये एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती है, उसके बाद स्टेट लेवल पे, और फिर वर्किंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे होती है। उसी लिए आज हम त्राल आए थे। और आज त्राल कॉन्स्टिट्यूंसी की जो वर्किंग कमेटी है, इसमें वर्करों को ये कहा गया कि जो हमारा अभी चल रहा है 1 महीना 30 मई से 30 जून तक मोदी के 9 साल बेमिसाल, उसमें जो कार्यक्रम आगे आने वाले, इन कार्यक्रमों के बारे में इनको आज हमने बता दिया, कब क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वही आज हम। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद का कहना है कि मरकजी हुकूमत के पास जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं कराने का कोई जवाब बाकी नहीं रहा। इस ज़मन में हुकूमत के रद्दमल को उन्होंने इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। उस्मान मजीद का मजीद कहना था कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहिए ताकि यहाँ एक पूरा जमहूरी सेटअप फाल बनाया जा सके। उस्मान मजीद ने बांडीपुरा सोनावारी के गांव शाहगुंड में पार्टी वर्कर्स के कन्वेंशन की सदारत की। इस इजलास में इलाके के कई कारकुन मौजूद थे। इस मौके पर उनके हमरा सोनावारी हल्के इंतखाब अपनी पार्टी के इंचार्ज इम्तियाज परे और जिले के दीगर सीनियर लीडर भी मौजूद थे। खुशकिस्मत लोग हैं हम। मुझे नहीं लग रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अब कोई बहाना बनता है इलेक्शन न करने का। अब जो कुछ होना था उन्होंने कर लिया है। मेरे ख्याल में इलेक्शन इस साल होना चाहिए और मेरी भी यही होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही गुजारिश होगी, इलेक्शन कमीशन से खासकर, कि अब कोई बहाना न कीजिएगा, यहाँ इलेक्शन कीजिए। कल हमारी डेमोक्रेसी इस लाजवाब है पूरे देश में, तो वी आर नोन फॉर अवर डेमोक्रेसी। तो इसलिए डेमोक्रेसी में ये चीज़ें होती हैं। इलेक्शन ना भी हो फिर भी लोगों की जिम्मेवारी लीडर्स की होती है, यानी जो नुमाइंदे रह चुके हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो लोगों के इश्यूज़ को रेज करें। इलेक्शन जब होंगे उसके लिए तो तैयार हम हैं, हम आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार रहेंगे, और जब भी इलेक्शन का बिगल बढ़ेगा हमारे वर्कर तैयार है इलेक्शन के लिए। लेकिन आज की मीटिंग का कुछ और मकसद था। आज लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंची और हमारा प्रोग्राम पहुंचा अपने साथियों की तरफ, और फिर बाद में करेंगे। एक ही इलेक्शन नहीं, और भी इलेक्शन आने वाले, पंचायत इलेक्शन है, म्यूनिसिपलिटी इलेक्शन है, फिर डीडीसी बीडीसी होगा, फिर बाकी इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, साथ साथ सबसे अहम इलेक्शन तो पार्लियामेंट इलेक्शन होगा। उसके लिए भी लड़ाई लड़नी है, उसको भी हमने लड़ना, वो सीट जीतनी है। कुपवाड़ा जिले का हंदवाड़ा नया बस स्टैंड इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है। आम लोगों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोगों को मुश्किलात का सामना है। बस स्टैंड में जगह जगह गड़े पड़े हैं। पूरा बस स्टैंड आवारा कुत्तों की आमाजगाह बन गया है। लोग इंतजामिया के रवैये से खफा हैं। लोगों का कहना है, इल्जाम है कि कई मरतबा यह मामला इंतजामिया की नोटिस में लाया, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं हंदवाड़ा के नए बस स्टैंड। नए बस स्टैंड पर करोड़ों रुपयों का खर्चा, लेकिन अब ये बस स्टैंड खस्ताहाली का शिकार हो चुका है। हम ये कहेंगे कि कूड़ादान बन चुका है। मामूली सी बारिशें हो जाती हैं तो ये बस स्टैंड तालाब की शक्ल अख्तियार कर लेता है। पैसेंजर के लिए इतना मुश्किल होता है कि हर दुकान के पटरी पर वो बैठता है, फिर दुकानदार बोलता है नहीं जी आप हमारी पटरी पर बैठ गए, आप साइड में बैठो। दूसरा पैसेंजर भी उससे परेशान। नंबर दूसरी बात, ये आप बस स्टैंड की हालत देख लीजिए सर। आप बाईपास से इधर तक आप देखो कितने खड़े हुए हैं। मैं कहता हूं जितना हम रकम तब उनको देते हैं, क्या वो एक नाला मत गाड़ी भी हमें इन जंपू में नहीं डाल सकते हैं? उससे भी हम परेशान हैं। अब हम ही थक जाते हैं। सरकार से हमने कितनी बार कहा, लेकिन सरकार को टस से मस नहीं होता है। डी साहब एक बार आए थे, डी साहब की नोटिस में हमने लाया था। डी साहब ने कहा था जो यहाँ की इंतजामिया है कि इनको ये फैसिलिटीज दे दो, लेकिन मुझे नहीं लगता है डी साहब के कहने पर उन्होंने अमल दरामद की, कुछ नहीं किया। अच्छा, गंदगी भी डाली जाती है, पूरी गंदगी सर। अब कुछ दिनों से वो गंदगी यहाँ पर उठाई। और टॉयलेट, आप टॉयलेट देख लीजिए, कम से कम एक टॉयलेट में 20-20, 25-25 लाख रुपए खर्चा हुआ है। पानी, पब्लिक टॉयलेट यहाँ पर है नहीं। पानी जो दिया गया, सरकार ने जो पानी दी वो कुछ दुकानदारों को दी, पब्लिक टॉयलेट यहाँ पर नहीं रखा गया। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 का शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे आए, हमें यहाँ पे शिफ्ट किया गया। लेकिन हमारे साथ ये वादा किया गया था कि हर कोई स्टैंड जो भी है, चाहे सोमो है, चाहे मैजिक है, चाहे बस है, कुछ भी, वो यही से रन करेगी हर किसी एरिया में। यही उम्मीद है, यही दुआ है कि न्यूज़ 18 पर जो ही खबर नशर होगी तो इंतजामिया इस बात को संजीदा लेगी ताकि इनके मुश्किलात का अजाला हो।
साथ ही काश्तकार मेवा बागात में जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव कर रहे हैं। तहम वहां महकमा बागबानी पुलवामा के माहिरीन ने दवापाशी करने से काबिल काश्तकारों को मशवरा दिया कि वो महकमा बागबानी के माहिरीन से राब्ता करने के बाद ही मेवा बागात में जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव करें। मौसम में बेहतरी है कि उनको ये मौका इस वक्त है कि वो हमारे जो टीमें हैं या हमारे जो एक्सपर्ट है उनसे राब्ता करके उनसे पूछें कि हमें इस वक्त कौन सी दवाई करनी है, क्योंकि यह ऐसे हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सी दवाई करेंगे, क्योंकि हमें पहले देखना होता है कि हिस्ट्री देखनी होती है कि इसने पहले कौन सी दवाई की है, अब इसको कौन सी दवाई करनी होती है। अगर कोई किसी भी जो भी ऑर्चिस्ट है इसको दवाई छिड़कनी होगी वो हमारे साथ राब्ता करे, हम उसको पूछेंगे कि उसने पहले कौन सी दवाई की है, तो हम इस वक्त उसको वो दवाई दे सकते हैं ताकि इसका बाग जो वो सेफ रहे। प्लस जो भी वो दवाई करे, मैं यहाँ पे इनको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कोशिश करें कि दवाई के साथ एक स्टिकर ज़रूर मिलाएं। अगर सिर्फ बारिश भी होगी फिर तो वो मौसर दवाई फिर भी मौसर होगी। हज़रत इमाम खुमैनी की 34वीं बरसी की मुनासिबत से दारुल कुरान ज़ैनबिया सैपुरा मगाम में तकरीब मुनक़िद हुई। इस तकरीब में इराक़ के मुजतहिद आलिम सैयद अली हुसैनी सिस्तानी के नुमाइंदा हिंदुस्तान आका अशरफ अली गौरी और हौज़ा इल्मी गुफरान माब लखनऊ के मुदीर सैयद रज़ा हैदर जैदी हिंदुस्तान और कश्मीर के दीगर मुक़्तदर उलमा ने शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ मकातिब के बच्चों और लोगों ने काफ़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में उलमा ने इमाम खुमैनी के ईरानी इनकलाब और उनके सीरत के फ़लसफ़े को बयान किया। उलमा ने कहा कि इमाम खुमैनी दुनिया व वाहिद शख्सियत है जिन्होंने इस्लाम के निज़ाम को हर जगह कायम करने के लिए राह हमवार की। तकरीब में बच्चों ने भी तालीम का मुजाहरा किया। तकरीब से पहले सैपुरा में इमामिया हॉल का भी इफ्तिताह किया गया, जिस पर लोगों ने खुशी का इजहार किया। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की बरसी है। जो इनकलाब आप लाए हैं, इस इनकलाब को सिर्फ इनकलाब इस्लामी कहना सही नहीं है, ये एक इनकलाब इंसानी है। यानी इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि हमारा इनकलाब मुस्तज़फ़ीन के लिए, यानी समाज का जो कमज़ोर तबका है, कुचला हुआ तबका है, हम उसके लिए इनकलाब लेकर आए हैं। और आज देखें किस तरीके से कमज़ोरों को दबाया जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है। दुनिया के हर खित्ते में इनकलाब खुमैनी की ज़रूरत है। हम इनकलाब सुना रहे हैं लोगों को, हमें इनकलाब को सुनाना नहीं है, सिर्फ हमें इनकलाब को पहुंचाना है। समझ लें कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, फिर हमारे अंदर इतनी ताकत आ जाए अल्लाह के फजल से कि अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। इमाम खुमैनी रज़वानुल्लाह ताला अलैह का जो इनकलाब था वो मानवता और इंसानियत और खुसूसी तौर पर ईरान में जो जुल्म बर्बरियत का निज़ाम कायम था, जो साम्राज्यत का परचम लहरा रहा था, उसको मिटाना था। और ख़ुद जो इमाम खुमैनी के लिए आइडियल थे वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला की कुर्बानी थी। तो इस चीज़ को, इस पैगाम को हमें आम करना है। अपने घर से पहले शुरू करें, हम घर में जो है किसी पर जुल्म न करें, उसके बाद मुआशरे पर किसी पर जुल्म नहीं होना चाहिए, मुल्क पर किसी पर जुल्म नहीं होना चाहिए। तो ये इनकलाब जुल्म के ख़िलाफ़ है, तागूत के ख़िलाफ़ है, और इसका परचम बुलंद करना इंसानी और अक़ली और शरई फरीज़ा है, जिसको हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।